V8 valve, which is pressure relief valve, which may release the vapor and or liquid towards the atmosphere. We have PICA, pressure indicator controller and alarm. P for pressure, I for indicator, C for controller, and A for alarm. That means it indicates the pressure. It controls the pressure, either controlling valve PV2 and PV1, and it also produces an alarm if the level is high of the pressure. So if you see in most of these circles are actually either indicator, controller, and alarm. If there is an alarm, then H and L is indicated, which indicates that whether it's a high parameter alarm or a low parameter alarm or the both. You will see level indicator alarm is a high and low alarm. Actually, however, in pressure indicator control alarm, we have a high alarm, that if the pressure is too much high above the threshold value, what is desired, it may alarm or it may beep up. So it may open your valve V2 so that nitrogen may go into your flammable liquid tank, and to avoid any explosive mixture. Or if the pressure is too much high, valve PV1 may actuate and your system may be directed towards the flare. And flare is a region where we combust hydrocarbons before emitting them into the atmosphere. कि जो हाइड्रोकार्बन जो आपके पास जो है जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, जिनको हमें वेस्ट करना होता है, हम उनको डायरेक्टली इन्वायरमेंट में वेस्ट नहीं कर सकते. We have to combust them so that we can only emit CO2 and water into the atmosphere along with oxygen and nitrogen and so on. So in addition, on the sideways, we have valve V1 to discharge all the liquid if required. We have temperature indicator and alarm, and this alarm is high alarm. We also have level indicator and alarm, which is high and low also. We have a valve 2 to exit the fluid from the flammable tank, which goes in this line, which has valve 3 to discharge all the tank before pump P1. Pump P1 directs this fluid towards the process, and we have a pressure indicator at the outlet of the pump. We have valve V4, and we are controlling flow rate through indicator and control and alarm. This is low alarm switch actually, and it measures the flow rate after valve V4 and controls the valve FV1 to the process. If the flow rate is too low, it may beep up. So any question with this diagram? So we are performing the Hazop study for this storage tank, in which we have a flammable liquid. So equipment reference and operating conditions are storage tank T1, on which we have to apply the Hazop study. So we have to consider the deviations for multiple parameters. The first parameter is level. So we are considering the level, and we are considering 3 guide words for this level. It may be less, it may be more, it may be no. So if there is a less level, what are different causes which has caused the low level in the tank? So there are different 5 causes that might have caused a low level in tank. It may be tank runs dry. There may be ruptured discharge line. There may be V3 open or broken. There may be V1 open or broken. There may be tank rupture. So if you see valve 3 and valve 1, valve 3 is here we have from where all the liquid can be discharged towards the outlet. We have valve 1, which from where all the liquid from the tank can be discharged at any point. So they may become or they may remain open, or they may become faulty, due to which our tank
level goes down and becomes less. Because of if the tank runs dry, pump may cavitate and it may damage the pump. If the rupture discharge or valves remain open or tank ruptures, then reagent may be released and it may cause any fire. So there are multiple actions that may be required in terms of notes and questions. Can reagent direct explode in the overheating pump? Because whenever pump cavitates, it requires a lot of energy to pump that vapor or less quantity of liquid. So in those scenarios, because of high energy required in the pump, pump efficiency is reduced and it may be overheated. So we have to check the overheating of the pump and the auto ignition temperature of the reagent, which is our flammable liquid. We have to also check the release quantity whenever there is valves, discharge valve become open or there is a rupture in the discharge line or rupture in the tank. So estimate release quantity, consider second level indicator low alarm, which may shut down the pump. Estimate the release quantity, consider valve V1 protection और what exhaust external events can cause a tank rupture. के tank rupture कैसे हो सकता है? कोई मिसाइल आके लग गया, कोई फ्रेगमेंटेशन हुई है, कोई आपके पास जो है मूविंग बॉडी उसको टच की है, तो उस बेसिस के ऊपर आपने चेक करना है क्या इवेंट्स हो सकते हैं जिसकी बेस पे हमें कोई सेफ गार्ड प्रोवाइड करनी है अक्रॉस द टैंक और नॉट, और इट इज़ नियर द रोड, इट मे बी द पॉसिबल एनी व्हीकल में हिट इट. सो उन केसेस और सिनेरियोज को आपने चेक करना है कि क्या इवेंट्स हैं जिसकी बेस के ऊपर टैंक रप्चर कर सकता है. we may have a more level of liquid in the tank. Unload too much from tank trunk, हमने अच्छा खासा unload कर लिया. Reverse flow from the process because of which level increase in the tank. Consequences, tank overfills, reagent have to be released from RV1, release valve 1 जो ऊपर exist कर रहा था to atmosphere. So we have to check whether RV1 can discharge liquid. Second, we might have to install a high level another alarm. That means the first alarm is not working, second may work out. And it may be a controller which may shut down your feed lines or which may shut down your pump and so on. So इस बेसिस के ऊपर उसने लेवल पैरामीटर के ऊपर हैजोप स्टडी परफॉर्म की स्टोरेज टैंक की. We can do for composition, we can do for pressure, we can do for temperature too. So second is composition, and in composition here he has selected two parameters. One is other than, second is as well as. Guide words as well as and other than. For other than, we may have a wrong reagent. It may result in possible reactions and may cause a tank rupture. So we have to sample our inventory. We have to sample each batch of inventory so that it may not cause any bad situation into the system. In a similar fashion, we have pressure, we have temperature, and we also have feed pump in which flow, pressure and temperature sensitivities are checked. Should go through them one by one, and it indicates a detailed Hazop study for flammable liquid tank storage, and it also indicates that how detailed we can perform a Hazop study from a process point of view. So any questions before we move towards the next topic of fault analysis? So next technique available for the assessment of failure and faults and hazard in the system is faulty analysis. And faulty analysis is another technique which identify that why an accident might have happened into a process. And therefore, faulty analysis is a deductive reasoning technique that focuses on one particular accident or event into the system. And the faulty analysis is a graphical method which actually tells us about the combinations of equipment faults and failures that may result into an accident.
So in relative faulty analysis, we suppose that what an accident may have happened, and we will check all the possible causes that might have caused that accident. And these causes are actually the faults and failures of our process units. And they may be the operational scenarios that might have caused this accident actually. So we suppose a particular accident or accident event, and then we check all the possible combinations that may have caused this accident. So this is all about faulty analysis. The solution of faulty analysis lists of set of equipment failures and human operated errors that are sufficient to result in an accident event of the interest. कि अगर आग लगनी थी, आग लग सकती है इस यूनिट के ऊपर, तो उस फायर के लिए क्या क्या काजेज हो सकते हैं, तो ये हमने इस फॉल्टी एनालिसिस में लिस्ट आउट करने होते हैं. एंड द एक्चुअल थीम इज दैट वी हैव टू अवॉइड दोस faults and failures so that this fire may not establish, this accident may not happen. The strength of FTA is as a qualitative tool is its ability to break down an accident into basic equipment faults and failures and errors. This allows the safety analyst to focus preventive measures on the basic causes to reduce the probability of an accident. तो हमने उन प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं ताकि आपके जो फॉल्ट्स एंड एरर्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी रिड्यूस हो और एक्सीडेंट ना हो सके. So the purpose is to identify combinations of equipment failures and human and operated errors that can result in an accident. When to use, it can be used both in design and operation phase. FTA can be used in design phase of the plant to uncover hidden failure modes that result from combination of equipment failures. FTA, including operator and procedural characteristics, can be used to study an operating plant to identify potential combinations of failure for specific accidents. So it can be applied both at the design phase and also on the operational phase. In design phase, it includes the equipment faults and failures. In the operational phase, it includes the procedural faults and failures, which may result into an accident. So FTA takes a top-down deductive analysis approach. That means from a product failure to the part failure. We initially suppose an accident, and we check all the possible causes that might have caused that accident. Therefore, FTA applies Boolean logic approach to identify how low-level events could combine to produce upper-level events. The sequence of events from pathways on the faulty provided with logical and OR gate. Boolean logic system के थ्रू हम AND और OR gates provide करते हैं जिनकी combination से कोई accident या कोई event हो सकता है. The AND symbol is used when coincident low-level events are necessary before a more serious higher order event occurs. कि एंड सिंबल हमने कब यूज करना है? एंड सिंबल हम तब यूज करते हैं जब तमाम लो लेवल इवेंट्स अकर होंगे, तो तब एक हायर लेवल इवेंट स्टार्ट होगा. By multiplying the probabilities of each event, in this set the probability of the next higher order event is obtained. Correspondingly, when the occurrence of any one of the set of lower order events is sufficient to cause a more serious higher order event, the events are joined by the OR gate. OR गेट इंडिकेट करता है कि लोअर ऑर्डर इवेंट में से मल्टीपल में से कभी कोई एक भी इवेंट हो जाता है, तो फिर आपके पास जो है एक हायर ऑर्डर इवेंट एग्जिस्ट कर रहा होगा. तो उसमें आपके पास जो है हम लोग OR गेट यूज़ करते हैं और उस बेसिस के ऊपर हम अपना फॉल्टी एनालिसिस को ड्रॉ कर रहे होते हैं. सो वी हैव एंड गेट सिंबल विच इज़ दिस फॉर्म, एंड एंड गेट output event occurs if all input event occur simultaneously. जब तमाम के तमाम input events occur होंगे तो तब higher order event होगा, तो तब हम AND gate यूज करते हैं. OR gate event occurs if any one of the input event occurs. कि अगर input में से सिर्फ एक event भी हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो move कर जाएगा higher order के ऊपर, तो then we have to use OR gate. And whenever we have any condition for event to occur, input produces output. When conditional event occurs, then inhibit gate is there.
तो तब हम इस तरह का गेट डायग्राम के अंदर यूज करते हैं। तो एक्सक्यूज मी यहाँ, सर। जी बेटा, यहाँ पे उसकी ये अंडरस्टैंडिंग सर आएगी। ये बोले। सर ये गेट्स वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, इसको रिपीट कर दें प्लीज। उसी को मैं यहाँ डायग्राम से ज़रा आपको ज़्यादा क्लियर होगा। बस सिंबल याद रखिएगा कि जो फर्स्ट है डी शेप, दिस इज एंड गेट, दिस इज और गेट, एंड हेक्सागोनल इज इनहिबिट गेट। तो सर ये बेस्ट प्रोसीजर ये है, बेस्ट ये है कि अगर आप फाइल को अंडरस्टैंड करते हैं। हायर और लोअर ऑर्डर का मतलब क्या होता है सर? हायर ऑर्डर का मतलब है फायर इज अ हायर ऑर्डर एंड लोअर ऑर्डर इज दी सर्कल्स जो लोअर ऑर्डर के ऊपर इवेंट अकर कर रही हैं। कि आप क्या जो अलार्म है वो डैमेज हो गया तो दिस लोअर लोअर ऑर्डर इवेंट, या आपका फ्लो रेट रुक गया है तो जी लोअर ऑर्डर इवेंट है। लेकिन उसकी बेस के ऊपर कोई फायर होती है तो वो हायर ऑर्डर इवेंट है। तो हायर ऑर्डर इवेंट को हमने अप्रोच करना है। तो जो ठीक में ऊपर जो हायर ऑर्डर इवेंट्स हैं, जो ऊपर अबव लेवल इवेंट्स हैं, उनको हम हायर ऑर्डर इवेंट्स कह रहे हैं। जो बेसिक फेलियर्स एंड काजेज हैं दे दीज आर लोअर ऑर्डर इवेंट्स। तो बेस्ट एग्जांपल उसने यहाँ पे फायर की दी हुई है कि हमारे पास मे बी वी हैव 3 डिफरेंट फ्यूल्स, कोल, नेचुरल गैस एंड ऑयल। इन तीनों में से एक भी अगर हुआ तो वो फ्यूल का सोर्स प्रोवाइड कर देगा फायर के लिए। तो यहाँ पे उसने और गेट यूज किया है। ऑक्सीजन, उसने कोई उसकी डिफरेंट फॉर्मेशन शो नहीं की, इधर सिंगल एंटिटी ऑक्सीजन की फॉर्म में इंडिकेट कर रहा है। इग्निशन में भी मेरे पास मल्टीपल सोर्सेज हो सकती हैं। इट मे बी इलेक्ट्रिक शॉक, इट मे बी प्रेशर, ओवर प्रेशर, इट मे बी थर्मल शॉक। इनमें से कोई भी अगर इग्निशन सोर्स होता है और थर्मल शॉक और इग्निशन, तो और का गेट हम यूज कर रहे हैं। तो इग्निशन का इवेंट हो सकता है आपके सिस्टम के अंदर। लेकिन फायर के लिए फ्यूल, ऑक्सीजन एंड इग्निशन ऑल थ्री साइमल्टेनियसली एक्ट करेंगे तो फायर होगी। आप इसको भी सिस्टम में से निकाल देंगे तो एंड गेट यूज नहीं हो सकता था, फायर नहीं हो सकती थी। सो एंड गेट हमें तब यूज करना है व्हेन ऑल द पॉसिबल लोअर इवेंट्स जो हैं, जो नीचे वाले इवेंट्स हैं, वो कंबाइन होंगे, वो अकर होंगे, तो तब हायर ऑर्डर इवेंट फायर स्टैब्लिश होगी। तो यहाँ पे हमने एंड गेट यूज किया है। तो दिस इज हाउ वी डू अ फॉल्ट एनालिसिस। उसने एक सिंपल एग्जांपल ऑफ फायर की बताते हुए आपको इसको डिमॉन्स्ट्रेट किया। आगे तो एग्जांपल्स मजीद भी आएंगे, हम ओवर प्रेशर ऑफ टैंक की बात भी करेंगे। उसने जनरलाइज फॉर्म के अंदर यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है, वी हैव लोअर इवेंट्स हियर, इंटरमीडिएट इवेंट्स एंड हायर ऑर्डर इवेंट्स। सो यहाँ पे उसने ए और बी को एंड से रिप्रेजेंट किया, दैट ए एंड बी बोथ simultaneously have to act to form this rectangular a plus b event. Similarly, A, B, and C events simultaneously act to perform A plus B plus C event. Similarly, this A plus B plus C event simultaneously act to form A plus B plus C. When these three intermediate events are there, if any of this is present, then top event may happen. मीन कि अगर ये दोनों नहीं हुए होते, सिर्फ ये दोनों कंबाइन हो गए A plus B बनाते, तो उसके बाद आगे टॉप इवेंट हो सकता था, बिकॉज नेक्स्ट इज ऑर गेट। और गेट में बॉटम में से, लोअर इवेंट में से कोई भी इनिशिएट हो जाता है, कोई भी एक्टिविटी हो जाती है, तो वो आपके टॉप इवेंट को काज करवा सकती है। और टॉप इवेंट कोई भी हो सकता है, उसमें टॉप इवेंट से ऊपर भी कोई एग्जिस्ट कर सकता है। सो और गेट्स के ऊपर वाली एक्टिविटी के लिए बॉटम में से कोई भी एक्टिविटी इनिशिएट होना नेसेसरी है, जबकि एंड के लिए तमाम सिमल्टेनियसली होंगी, तब आपके पास जो है टॉप एक्टिविटी एग्जिस्ट करेगी सिस्टम के अंदर। सो एनी क्वेश्चन? सो आगे उसने उसी की थ्योरी बताई हुई है, क्या हम अडॉप्ट करते हैं, क्या प्रैक्टिसेस हैं। जी। हम्म। ये अलार्म को इंडिकेट नहीं कर रहा, ये एक्सीडेंट को इंडिकेट कर रहा है। अलार्म तो हम सेफ्टी के तौर पर अडॉप्ट कर चुके हुए हैं, या अलार्म या बाकी चीज़ें तो हम इस इवेंट को मिनिमाइज करने के लिए अडॉप्ट करेंगे।
तो ये कह रहा है कि और गेट कह रहा है कि आपके पास जो है फ्यूल में से नेचुरल गैस, कोल और ऑयल में से कोई भी होगा तो वो फ्यूल का सोर्स प्रोवाइड कर देगा, और एनी ऑफ देम। जबकि एंड इंडिकेट करता है, एंड गेट इंडिकेट करता है कि ये तीनों जब तक एग्जिस्ट नहीं करेंगे, जब तक इनिशिएट नहीं होंगे, तब तक फायर इस्टेब्लिश नहीं होगी। अगर इसमें से आप ऑक्सीजन को भी रिमूव कर देते हैं तो एंड गेट इनिशिएट नहीं होगा, आपका हायर ऑर्डर इवेंट इनिशिएट नहीं होगा। तो एंड के लिए तीनों का सिमल्टेनियसली होना और उनका इनिशिएट होना नेसेसरी है, देन अ हायर ऑर्डर इवेंट माइट हैपन। और gate only require one event from the lower order to initiate the higher order event. Any question? So once a faulty analysis has been completed, it becomes a rather easy approach to investigate the impact of alternatives, preventive measures. So जब आपके पास आप faulty analysis कर चुके होते हैं तो आपको पता है कि आपने स्टोरेज टैंक के अंदर एक फ्लेमेबल लिक्विड स्टोर करना है, तो यू हैव टू प्रोवाइड प्रिवेंटिव मेजर्स के, बिकॉज एंड गेट का मतलब ये है कि जो 3 इवेंट्स थे उनमें से अगर कोई भी आप उसमें से 3 जो काजेस थे उनमें से कोई भी अगर आप रिड्यूस कर दें तो एंड गेट ऑपरेट नहीं करेगा। दैट मीन्स यू कैन प्रोवाइड अ प्रिवेंटिव मेजर्स टू एंड गेट मोर इजीली। जबकि और गेट का मतलब है आपको जितनी भी पॉसिबिलिटीज थी उन सबको मिनिमाइज करना है। सो ये आपके फॉल्टी एनालिसिस के अंदर बताएगा कहाँ कहाँ पे किस किस तरह के मेजर्स के एंड गेट के क्रॉस वी कैन अडॉप्ट आइदर ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल इवेंट, कि कौन सा इवेंट है जो मोस्ट प्रोबेबल, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, उसको आप रिड्यूस कर दें तो एंड गेट स्टार्ट ही नहीं होगा, या जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है उसको मजीद 0 लेवल फ्रीक्वेंसी पे ले जाएं। तो इसका मतलब है कि आपने ऑक्सीजन नहीं जाने देनी अपने प्रोसेस के अंदर, उसके ऊपर नाइट्रोजन ब्लैंकेट प्रोवाइड कर दें और उसके ऊपर CO2 ब्लैंकेट प्रोवाइड कर दें, उसके क्रॉस आपके पास जो है उसको एयर टाइट कंट्रोल प्रोवाइड कर दें, देन इट में भी ऑक्सीजन बैरियर प्रोवाइड कर रहे हैं आप। तो इसका मतलब है कि आपने एंड गेट में से एक एलिमेंट निकाल दिया और वो एंड गेट तब तक ऑपरेट नहीं करेगा until and unless we have all other इवेंट्स टू स्टार्ट दिस। तमाम के तमाम इवेंट्स जब तक सिस्टम के अंदर आते नहीं हैं, तमाम के तमाम फेलियर्स जब तक इनिशिएट नहीं होते, तब तक हायर ऑर्डर इवेंट नहीं होगा। लेकिन इन और गेट वी हैव टू अडॉप्ट प्रिवेंटिव मेजर्स टू ऑल द सिनेरियोज. So the probability or frequency is much more important also. The probability of these events in turn could be reduced by installation of independent low pressure alarm to the tank. कि आपके पास लो प्रेशर जो इग्नाइटर को एक्चुअली वो रिड्यूस कर रहा है, कि लो प्रेशर अलार्म लगा दिया जाए जो बता दे कि प्रेशर इनिशिएट हो चुका है, ignition start हो सकती है, and we may have to stop the system. The process of reducing the probability of most probable event could be continued until an overall acceptable risk level is eventually achieved. हम कोई प्रिवेंटिव मेजर लेते हैं, उसके बाद दोबारा फॉल्टी एनालिसिस करते हैं, चेक करते हैं कि रिस्क एनालिसिस किस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है. Therefore, the magnitudes of events are typically expressed in terms of amount of flammable or material released during an event. Since release duration is directly related to the cause and context of the release, estimation is generally quite subjective. कि रिलीज कितना हुआ है और कितना फ्रीक्वेंट हुआ है उस पर डिपेंड करता है कि वो रिलीज आपका रिस्क बन सकता है और एक्सीडेंट काज कर सकता है या नहीं कर सकता. सो वी हैव टू डिटरमिन द थ्रेशोल्ड वैल्यूज कि कितने रिलीज के बाद इट मे बिकम अ डेंजरस थिंग. To determine the hazard severity requires the quantifying with the aid of state-of-the-art hazard models, what if Hazop study, and the likely extent of toxic or flammable vapor cloud travel under different atmospheric conditions and so on. Exemplified.
और उसमें आगे मजीद एग्जाम्पल्स दे रहा है थर्मल रेडिएशन फील्ड अक्रॉस वेपर pool fires and overpressure from an anticipated explosion, any missile fragmentation activity that may result from a confined explosion. So वो इस तरह कह रहा है कि इस तरह के डिफरेंट पॉसिबल्स हो सकते हैं. आपने उनकी फ्रीक्वेंसी चेक करनी है कि इस तरह के इवेंट आपके प्लांट पे कितने फ्रीक्वेंट हो सकते हैं, हाउ मेनी टाइम्स दे मे हैपन ऑन अ प्लांट इन अ ईयर, इन अ मंथ एंड सो ऑन. And then you multiply the hazard with the frequency, it gives you a risk, and higher the risk number, higher the probability of the accident to happen. And these hazard events can then be translated into hazard zone estimates by incorporating criteria for human injury and property damage. Finally, the results of various law scenarios can be combined and presented in risk profiles listing injuries, fatalities or property damage. तो फाइनली हम फॉल्ट एनालिसिस की बेस के ऊपर रिस्क एनालिसिस, रिस्क प्रोफाइलिंग करते हैं अपने यूनिट्स की, अपने इन्वेंट्रीज की, कि हमारी प्रोडक्ट जो है या हमारा ये यूनिट जो है, ये टैंक जो है, अगर इसके ऊपर ये इवेंट पॉसिबल होता है तो ये इस साइज़ का इवेंट होता है तो ये इतनी इंजरीज या फेटेलिटीज़ काज कर सकता है. सो यू हैव टू बी very precise in SOPs so that this event must be reduced. Another technique is available, which is failure mode and effect analysis, and it is only applied towards our design stage and is not applicable on operation stage. Failure mode, because failure mode is only applicable to the unit, not in the procedure. And the way, and failure mode is the way in which something might fail. Fmea, effect analysis, studying the consequences of various failure modes to determine the severity of the customer. So it actually consider what possible failures might have occurred and what will be their effects. So it is a part of the Hazop study. Hazop study में अपने तमाम deviations देखी थी जिनको failure कह रहे हैं, और उनके consequences भी देखे थे जिनको हम effect कह रहे हैं. So studying the consequences of the various failure modes to determine the severity to the customer. So the effect and mode, the failure mode and effect analysis is generally applied to specific piece of equipment in a process, a particular hazardous part of a large process. Its primary purpose is to evaluate the frequency and consequences of component failures on the process and surroundings. Its shortcoming is that it focuses only on component failure and does not consider errors in operating procedures. Therefore, it has limited use in chemical process industry. So, example of failure mode, the process function receives an order कि आपको प्लांट से एक ऑर्डर आया है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. उसकी बेस के ऊपर आपने एक सिग्नल जनरेट किया है कि वाल्व शुड बी क्लोज्ड, लेकिन वो सिग्नल कहीं पे रास्ते में लॉस्ट हो चुका है. जो वाल्व है उसको डज नॉट रिसीव ऑर्डर, रिसीव्ड इनकरेक्ट ऑर्डर, रिसीव टू मैनी ऑर्डर और रिसीव टू लिटर ऑर्डर, जिसकी बेस के ऊपर आपका वाल्व इज आउट ऑफ ऑर्डर, वो ओपन शॉट क्लोज सिनेरियो के अंदर मूव कर रहा है. सो डिफरेंट फेलियर्स हो सकते हैं, डिफरेंट उसके इफेक्ट्स आ सकते हैं जो हम चेक कर सकते हैं किसी भी फंक्शनैलिटी के. सो फॉल्टी एनालिसिस की एग्जांपल हमारे पास एग्जिस्ट करती है. प्रोड्यूस अ फॉल्ट ट्री फॉर द सिस्टम शोन इन फिगर प्रॉब्लम 2.16. आपकी 16 नंबर प्रॉब्लम है where the highest order event is the overpressure of the vessel. The possible causes of various failures should be suggested. कि हमारे पास एक प्रेशर है, वेसल है, उसका ओवर प्रेशर इवेंट और ओवर प्रेशर एक्सीडेंट हमने सर्च आउट करना है कि वो क्यों होगा. वेसल में क्या हो रहा है? वी हैव एन एयर विच इज गोइंग इन, वी हैव पिस्टन प्लंजर पंप, पीडी पंप एग्जिस्ट करता है जो इस एयर को आपके वेसल के अंदर इनपुट प्रोवाइड कर रहा है थ्रू अ वाल्व. द वेसल के टॉप के ऊपर हमारे पास प्रेशर रिलीफ वाल्व एग्जिस्ट करता है जो वेसल को डिस्चार्ज कर सकता है टू द एटमॉस्फेयर. वी आल्सो हैव प्रेशर इंडिकेटर एंड कंट्रोलर. PIC मीन प्रेशर
I for indicator and C for controller. It indicates the pressure and controls the piston plunger pump to increase or decrease the pressure of the air within the vessel. तो वो पिस्टन प्लंजर पंप के आरपीएम या उसकी जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करता है डिपेंडिंग अपॉन द प्रेशर इन योर वेसल और उस बेसिस के ऊपर एयर की एंट्री कंट्रोल कर रहा है जिसकी बेस पर प्रेशर कंट्रोल हो रहा है हमारे पास एग्जिट के ऊपर लाइन एग्जिस्ट करती है जो वाल्व से कंट्रोल हो रही है सो द मैक्सिमम इवेंट जो सबसे ऊपर एग्जिस्ट करता है वो ओवर प्रेशर ऑफ वेसल है ओवर प्रेशर ऑफ वेसल क्यों हो सकता है प्रेशर डिमांड इनिशिएटेड कि प्रेशर डिमांड इनिशिएट हो चुकी थी या आपका प्रोटेक्टिव सिस्टम फेल हो चुका हुआ है इन दोनों में से दोनों इवेंट होंगे तो आपका ओवर प्रेशर ऑफ वेसल हो सकता है और फिर हमने सब वन बाय वन इन दोनों इवेंट्स को चेक करना है कि प्रेशर डिमांड इनिशिएटेड क्यों हुई है या फेलियर ऑफ प्रोटेक्टिव सिस्टम क्यों एग्जिस्ट करता है प्रेशर डिमांड इनिशिएट क्यों हुई थी आपके वेसल के अंदर आपका एग्जिट वाल्व क्लोज हो चुका है जिसकी बेस के ऊपर आपका वेसल के अंदर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है सेकंड ऑपरेटर फेल्स टू स्टॉप द डिमांड कि ऑपरेटर ने जो है कहा गया कि जाके आउटलेट वाल्व क्लोज करें उसने उसको क्लोज नहीं कर सका कि ये दोनों कंबाइन होंगे थ्रू एंड गेट तो प्रेशर डिमांड इनिशिएट होगी आपकी वेसल के अंदर एग्जिट वॉल क्लोज कब होगा व्हेन एग्जिट वॉल फेल्स क्लोज्ड या एग्जिट वॉल डैमेज इन दोनों में से कोई भी इवेंट हुआ तो आपका एग्जिट वॉल बंद होने से रुक जाएगा ऑपरेटर फेल्स टू स्टॉप डिमांड वी मे हैव अलार्म फेल्स टू साउंड अलार्म ही नहीं बजा अलार्म्स नॉट ओबेड बाय द ऑपरेटर इन दोनों में से कोई भी इवेंट अगर होता है तो ऑपरेटर फेल्स टू स्टॉप द डिमांड सेकंड जो हमारे पास इवेंट था एंड गेट के अंदर फेलियर ऑफ प्रोटेक्टिव सिस्टम इट माइट हैव हैपेंड बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ वेंट सिस्टम और बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ प्रेशर इंडिकेटर एंड कंट्रोल कि जो आपका रिलीफ वाल्व है वो नहीं ऑपरेट हुआ या आपका प्रेशर इंडिकेटर कंट्रोल जो है वो ऑपरेट नहीं हुआ जिसने इनलेट क्लोज नहीं किया जिसकी बेस के ऊपर आपका ओवर प्रेशर हुआ और आपकी वेसल ब्रेक कर सकती थी So failure of vent system क्यों हुआ because vent system installed incorrectly हुआ हो ये हो सकता है या vent system fails closed vent system operate ना हो सका because of corrosion and so on yes सर ये प्रेशर डिमांड इनिशिएटेड का मतलब क्या है प्रेशर डिमांड इनिशिएटेड का मतलब है कि आपकी वेसल के अंदर प्रेशर इंक्रीज कर गया है किस वजह से इंक्रीज किया है उसने नीचे उनके दो रीजंस लिखे हुए हैं इसका मतलब है एग्जिट वाल्व क्लोज हो चुका था कि आउटलेट वाल्व किसी वजह से वो ख़राब हुआ क्या उसने नीचे उनके रीजंस बेसिक फॉल्ट्स लिखे हुए हैं एग्जिट वाल्व अगर आपका फेल्स क्लोज बंद होने से नहीं हो पा रहा या वो डैमेज हो चुका है इन दोनों में से कोई भी इवेंट होता है तो उसका मतलब है एग्जिट वाल्व क्लोज हो जाएगा तो इसका मतलब है कि बाहर आपका प्रोडक्ट नहीं जा रहा तो इन दोनों में से एक इवेंट होता है और गेट हमने यूज़ किया है तो फिर एग्जिट वाल क्लोज हो जाएगा जब एग्जिट वाल क्लोज है इनलेट अभी चल रहा है आपके वेसल के अंदर प्रेशर इंक्रीज करता जाएगा प्रेशर इंक्रीज एक्चुअली यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज लिखना चाहिए था लेकिन उसने एक्चुअली टेक्निकल टर्म यूज़ की है वो जनरली यूज प्रेशर डिमांड इनिशिएटेड की टर्म यूज़ करते हैं वेसल के लिए तो इसलिए वहाँ पे प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा वेसल में और एंड इफ इट कंबाइंस विद द प्रोटेक्टिव सिस्टम फेलियर इट विल क्रिएट अ ओवर प्रेशर ऑफ द वेसल अगर प्रेशर इंक्रीज करता और आपका प्रोटेक्टिव सिस्टम चलता रहता आपका रिलीफ वाल्व ऑपरेट कर जाता आपका पीआईसी सिस्टम चलता रहता जो पीछे एग्जिस्ट करते थे मीन अगर आपका यहाँ पे ये वाल्व क्लोज हो गया था या यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो आपका रिलीफ वाल्व ऑपरेट होना चाहिए था आपके पीआईसी को एयर की अमाउंट कम करनी चाहिए थी लेकिन इन दोनों ने फेलियर ऑफ प्रोटेक्टिव सिस्टम ने और प्रेशर इंक्रीज ने ओवर प्रेशर किया वेसल को इसकी वजह से बर्स्ट या बाकी कुछ हो सकता है आपकी वेसल का तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन से इन दोनों इवेंट की हैपनिंग से आपका ओवर प्रेशर हुआ है वेसल का
फेलियर ऑफ प्रोटेक्टिव सिस्टम क्यों है? आपका दो रीजंस थे जिनको हमने प्रोटेक्शन रखी थी प्रोटेक्टिव सिस्टम की फॉर्म के अंदर। एक वेंट सिस्टम इंस्टॉल किया था और वी इंस्टॉल करके, रिलीफ वाल्व इंस्टॉल करके, और पीआईसी इंस्टॉल किया हुआ था, प्रेशर इंडिकेटर कंट्रोल। तो इन दोनों के भी आगे उसने रीजंस लिखे हुए हैं। वेंट सिस्टम क्यों हो सकता है? इन तीनों में से कोई भी हो सकता है कि वेंट सिस्टम इंस्टॉल ही सही नहीं हुआ, वो काम नहीं कर रहा, फेल्स क्लोज्ड, वेंट सिस्टम डिज़ाइन टू स्मॉल, इस लेवल का इंस्टॉल नहीं था कि वो मैक्सिमम प्रेशर को बियर कर सकता। डिज़ाइन टू स्मॉल, बेसिक लेवल का फेलियर है, इससे नीचे नहीं हम जा सकते। इंस्टॉल्ड इनकरेक्टली, बेसिक इवेंट, ऐसे नीचे नहीं जा सकते। फेल्स क्लोज क्यों हुआ? वेंट सिस्टम डैमेज हुआ था या मेंटेनेंस फेलियर था? ये दोनों। अब मेंटेनेंस फेलियर से नीचे क्या काजेज हो सकते हैं? अगर आपको मेंटेनेंस का पता है तो आप मेंटेनेंस के भी नीचे सब ब्रेक कर सकते हो। इफेक्ट ऑफ फेलियर पीआईसी, पीआईसी डैमेज्ड फॉर inoperation, पीआईसी प्रॉपरली इंस्टॉल्ड, तो उसके अंदर रिवर्स फ्लो थ्रू पीआईसी, पीआईसी इम्प्रॉपरली मेंटेन्ड एंड सो ऑन। रिवर्स फ्लो कब हो सकता है? जेट वॉल्व ओपन एंड हाई प्रेशर डाउन स्ट्रीम। तो उन रीजंस की वजह से आपके पास जो है हाई रिवर्स फ्लो थ्रू पीआईसी हो सकता है। So any question with this faulty analysis? सर अगर हम उस डायग्राम में देखें तो अगर पहले दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी तभी ओवर प्रेशर आएगा ना, क्योंकि एंड लग रहा है उनके दरमियान। कहाँ पे? यहाँ पे? सर शुरू में ओवर प्रेशर की जो दो कंडीशंस हैं नीचे, अगर हाँ दोनों जी, होंगी तो ओवर प्रेशर होगा। हाँ जी, ऐसे ही है। इसीलिए उसने एंड गेट लगाया है ना यहाँ पे कि प्रेशर डिमांड, प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, और अगर आपका रिलीफ वाल चल जाता तो कभी भी ओवर प्रेशर ना होता। ओके। तो इसका मतलब यही है ना कि अगर रिलीफ वाल प्रोटेक्टिव सिस्टम चल जाता या पीआईसी चलता रहता तो आपका ओवर प्रेशर ना होता सिस्टम के अंदर। आप इनलेट क्लोज कर देते, या इनलेट अगर चल रहा है रिलीफ वाल ओपन हो जाता तो आपके पास जो है प्रेशर इंक्रीज ही ना करता। और प्रोटेक्टिव सिस्टम अगर फेलियर हो चुका है, आपका प्रेशर डिमांड ही नहीं बढ़नी चाहिए थी, आपका आउटर वॉल ओपन रहना चाहिए था। अगर आउटर वॉल ओपन होता, प्रेशर डिमांड इंक्रीज ना करती आपके टैंक के अंदर, तो फिर फेलियर आपके प्रोटेक्टिव सिस्टम का पता नहीं चलना था, और प्रेशर होना ही नहीं था। तो एंड गेट का मतलब, तो एंड गेट इज अ मस्ट थिंग एक्चुअली। एंड गेट का मतलब है कि आपने दोनों को अपने ठीक करना है, दोनों की मेंटेनेंस करनी है, दोनों के ऊपर आपने प्रोटेक्टिव सिस्टम इंस्टॉल करना ही करना है। एंड गेट इस चीज़ को इंडिकेट करता है हमें। सो जब भी हम इसमें प्रिवेंटिव मेजर्स की तरफ जाते हैं तो एंड गेट मींस ऑल एंड गेट की सब नोड्स के अंदर जितने इवेंट्स आते हैं, मीन कि ये दोनों इवेंट्स को हमें क्लोज करना पड़ेगा। इन दोनों के ऊपर हमें प्रिवेंशन अडॉप्ट करनी पड़ेगी, हमें प्रोटेक्टिव सिस्टम भी चेक करना पड़ेगा, हमें प्रेशर डिमांड भी इनिशिएट करनी पड़ेगी। लेकिन और गेट जहाँ पे भी है, और गेट का मतलब अगर यहाँ पे देखते हैं कि वेंट सिस्टम अगर टू स्मॉल था तो फिर भी फेलियर है वेंट सिस्टम का। अगर वेंट सिस्टम क्लोज हो गया फिर भी वेंट सिस्टम का फेलियर है। मीन और का मतलब है इन तीनों में से कोई भी हो गया तो, और का मतलब है हमें इन तीनों को ठीक करना पड़ता है। लेकिन अगर एंड गेट का मतलब है अगर हमने प्रोटेक्टिव सिस्टम ठीक रखा तो प्रेशर डिमांड इंक्रीज हो, जो मर्जी हो, जब मर्जी आप आउटर वॉल क्लोज कर दें, वेंट ऑपरेट करेगा, एयर बाय डिस्चार्ज हो जाएगी, तो वो इशू नहीं होगा। तो एंड गेट का मतलब है वी नीड अ प्रोटेक्टिव ऑन वन ऑफ द सब नोड, जबकि और मीन वी नीड अ प्रोटेक्शन फॉर ऑल सब नोड्स। तो हमें तमाम सब नोड्स के ऊपर प्रोटेक्शन देनी पड़ती है। एनी अदर क्वेश्चन? नेक्स्ट वो बता रहे हैं सेफ्टी इंडेक्स। जी एक्सक्यूज मी सर। जी जी बेटा बोले। सर जो और गेट लगाते हैं इसमें तो सारे कंडीशंस को मीट करना पड़ता है ना, कि मतलब कोई भी एक अगर फॉलो हो रहा है तो हमारा मतलब वो हो जाएगा, मतलब हाँ जी, एग्जिट वाल्व क्लोज हो जाएगा। तो सर और की जगह हम क्यों लगा सकते हैं सर? और की जगह अगर यहाँ पे एंड लगा देंगे तो इसका मतलब है
ये तीनों होते तो ऊपर वाला इवेंट होता। तो आपने सिलेक्शन करनी है ना कि ये 3 इवेंट्स हैं मेरे पास, फेलियर ऑफ वेंट सिस्टम क्यों हुआ, कि जो ऊपर रिलीफ वाल्व लगाया हुआ है वो क्यों नहीं चला। एक 3 ही काजेस दिमाग माइंड में उसके आए हैं। उसने कहा है कि जी वाल्व ही छोटा लगा हुआ था, या आपके पास जो है वाल्व इंस्टॉल ही नहीं सही हुआ था, कि उसको मीन के लेफ्ट टू राइट लगाना था, आपने राइट टू लेफ्ट लगा दिया उसको, या आपके पास जो है वो चला ही नहीं, जंग लगा हुआ था, या कोलिजन की वजह से, या उसकी मेंटेनेंस नहीं हुई। तो उसने नीचे उसके रीजंस भी लिखे हुए हैं, तो और गेट के थ्रू। तो इन तीनों में से अगर कोई भी इवेंट होगा तो आपका फेलियर होगा इवेंट सिस्टम का। ये तीनों भी कंबाइन हो सकते हैं। एंड का इवेंट भी इनमें आ सकता है कि डिजाइन स्मॉल था और वो स्मॉल भी नहीं चला, वो फेल्स क्लोज रहा। तो ये भी हो सकता है, लेकिन वो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है उसमें, और इज मोर सूटेबल, इसलिए उसने और गेट यहाँ पे यूज किया है। लेकिन अगर अगर आप कहें कि जी टॉप लेवल के ऊपर यहाँ पे हमने और गेट क्यों नहीं यूज किया, बिकॉज अगर यहाँ पे हम और गेट यूज करते तो उसका मतलब है सिर्फ फेलियर और प्रेशर काज कर सकता था, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए और गेट यहाँ पे रॉन्ग है। सो उस केस के अंदर हम जी बोलें। तो सर इस तरह का आर्ग्यूमेंट ज्यादा रिस्की हो गया उस आर्ग्यूमेंट से। नहीं, इन रिस्क को हमने अवॉइड करना है ना। ये एक्चुअली बताता है कि हमने इन रिस्क को अवॉइड करना है। अवॉइड कैसे करना है कि वेंट सिस्टम की आप प्रॉपर मेंटेनेंस करें, उसके जो इंस्टॉलेशन है प्रॉपर इंस्टॉलेशन होनी चाहिए। आपका जब ऑपरेशनल एसओपी डिफाइन होगा उसमें लिखा होगा कि जी या डिज़ाइन फेज के अंदर बताया हो, आपको बताना पड़ेगा कि जी जो रिलीफ वाल्व है वो इस साइज का, इस वेसल के लिए, इस प्रेशर तक के लिए आपने इंस्टॉल करना है। तो आपका डिज़ाइन मैनुअल बता देगा कि जो स्मॉल वाला जो केस है ये नहीं होना, बिकॉज आपने सही इंस्टॉल किया है। फेल्स क्लोज की इशू को आपने कैसे रिजॉल्व करना है, आप कहेंगे कि जी मेंटेनेंस आफ्टर एवरी 3 मंथ्स होनी चाहिए इस वाल्व की, बिकॉज इट इज क्रिटिकल, या 2 मंथ्स के बाद या 2 वीक्स के बाद। वो केमिकल इंजीनियर ने या ऑपरेशनल प्रोसेस इंजीनियर डिफाइन करना है वहाँ पे, ऑपरेशन इंजीनियर ने। तो आपने इफ़ पॉसिबल जहाँ पे डिमांड आपका जो एक्शन है, अगर वो कोई रिक्वायरमेंट है तो आप उसको कह देंगे ये इट मस्ट बी डन। अलार्म फेल टू साउंड, अलार्म नॉट अवेयर बाय द ऑपरेटर, आपका एसओपी वेल डिफाइन होना चाहिए कि अलार्म जब बीप करे, रेड अलार्म जब बीप करे, एन एक्शन शुड बी टेकन। अगर नहीं होता तो ऑल कोड्स एंड कंडक्ट शुड बी फॉलोड, जिनको आप यहाँ पे इंडिकेट करते हो। तो वो तमाम की तमाम फिर आपका जो आगे सेफ्टी ऑडिट आता है या सेफ्टी इंडेक्स आगे, वही यही बातें करने लगा था कि ये हेजोप या हम लोगों ने फॉल्टी एनालिसिस के बाद क्या होना है। हेजोप या फॉल्टी एनालिसिस, हेजोप में तो फिर भी हम एक्शंस बता रहे होते हैं, फॉल्टी के अंदर हमें एक्शंस नहीं हम बताते, एक्शंस हमें बाद में खुद जज करने पड़ते हैं थ्रू आवर सेफ्टी ऑडिट। और जनरली फॉल्टी एनालिसिस किसी इवेंट के लिए होता है, या एक ये डिटेक्टिव अप्रोच है कि आपके प्लांट पे आग लगी या एक्सप्लोजन हुआ, क्यों हुआ, उसमें जनरली हम फॉल्टी एनालिसिस करते हैं। जबकि हेजोप भी किया जा सकता है, लेकिन हेजोप एक जो है वो प्रोडक्टिव अप्रोच है। जबकि जो ये जो है फॉल्टी एनालिसिस, ये डिटेक्टिव अप्रोच है, इसमें आपके पास आपको प्रोडक्ट पहले से पता है, आपको पता है कि ओवर प्रेशर होना था या ओवर प्रेशर का एक्सीडेंट इस सिस्टम के अंदर हो सकता है। मे बी यहाँ पे आपके पास आप सपोज करें कि ओवर प्रेशर मीन एक्सप्लोजन, यहाँ पे आप ये भी सपोज कर सकते हैं यहाँ पे फायर हो सकती है, तो अपने फायर के लिए तमाम का तमाम फॉल्टी एनालिसिस क्रिएट करना है। यहाँ पे स्पिलेज हो सकती है, स्पिलेज के लिए आपके पास पूरा का पूरा अपने फॉल्टी एनालिसिस की यूनिट का डेवलप करना है। कोई ट्यूब ब्रस्ट कर सकती है, उसके लिए आपने फॉल्टी एनालिसिस क्रिएट करना है। और ये आपकी प्रोसेस टू प्रोसेस उसकी ऑक्सिलरीज और एंसिलरीज पे भी डिपेंड करेगा। प्रोसेस अगर प्रोसेस के ऊपर रिलीफ वाल्व लगा ही नहीं हुआ तो वो रिलीफ वाल्व वाला तमाम का तमाम जो सेक्शन है वो डिलीट हो जाता है। तो उन चीज़ों के ऊपर आपके तमाम सिनेरियोस डिपेंड कर रहे होंगे। एनी क्वेश्चन?
So it was chapter number 2 of your plant design economics for chemical engineer by Peter and Timmerhorst, 5th edition. और आपके 4th edition में chapter number 3 है. उसके अभी तक हमने सिर्फ 3 टॉपिक किए हैं. एक्सपोजर, what if कह रहा हूँ, Hazop study and fault analysis. If you have any question, you can raise. In the meanwhile, I'm doing the required things. Attendance वगैरह बाकी चीज़ें मैं डाउनलोड कर रहा हूँ. अस्सलाम वालेकुम सर. जी बोलें बेटा. सर मेरा नाम आमना बीबी है. 2019 CH43 मेरा टीम्स नहीं चल रहा था, इसलिए मैं दोस्त के साथ ले रही हूँ क्लास. आप अपना रोल नंबर टेक्स्ट कर दें या अपने दोस्तों के लिए टेक्स्ट कर दें. चलो ठीक है सर. थैंक यू. टीम्स के ऊपर, इसी क्लास के अंदर टीम्स के ऊपर. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.